بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صفحے میں جو آپ اس طرح سے اسکوائر میں حروف کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پچھلے نشست میں یا پچھلے سے پچھلے نشست میں ہم نے کسی ویڈیو میں ان حروف کی ادائیگی کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ثا، ذال، ضا ان کی ادائیگی کے اوپر بات کریں گے، ان کے مخرج دیکھیں گے اور ان کی ادائیگی کے طریقے میں جو عمومی غلطی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی۔ ایک بات جو ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے استاد نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ان کی اصلاح کی مدد سے ہمیں پتہ چلا کہ لفظ مخرج صحیح نہیں ہے بلکہ لفظ مخرج صحیح ہے، اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے آواز نکلنے کی جگہ، لیکن حروف تہجی کے بیان میں اور تجوید کے اندر اس کا مطلب حرف کی ادائیگی کے وقت وہ جگہ جہاں سے وہ حرف ادا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ پچھلے تمام ویڈیوز کے اندر جہاں پہ لفظ مخرج ادا کیا گیا تھا وہاں پر ہمارا مقصد مخرج تھا۔ سب سے پہلے ان حروف کی مخرج کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ 3 حروف ایسے ہیں ثا، ذال، ضا جن کا مخرج ایک ہی ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ زبان کی نوک سے کیا مراد ہے اور 2 دانتوں کے سرے سے کیا مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان کی نوک بس ایک پوائنٹ پر ہو، بلکہ نوک کا حصہ نسبتاً تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ پورا ہی حصہ نوک کہلاتی ہے۔ تو جب ہم زبان کی نوک کی بات کریں تو یہ اگلا حصہ، زبان کا اگلا کچھ حصہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، یہ زبان کی نوک کہلائے گی۔ سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 دانت جہاں سے ہونٹوں کو ٹچ کر رہے ہیں وہ جگہ اس دانتوں کے سرے کہلائیں گے۔ اس تصویر میں دیکھیے کہ یہ سامنے کے 2 دانت نیچے کے 2 دانت سے ملے ہوئے ہیں، تو جس جگہ سے یہ آپس میں مل رہے ہیں اگر آپ اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں سے ملائیں تو یہ آپس میں سرے ملتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ سرے سے کیا مراد ہے، یا جہاں سے کوئی چیز کاٹی جا سکتی ہے اس جگہ کو سرا کہا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ تعریف کو ذہن میں رکھیے کہ جب زبان کی نوک یعنی نسبتاً ایک تھوڑا بڑا حصہ جو نوک کے قریب ہے، جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، اوپر کے 2 دانت کو یاد رکھیے اور سرے سے کیا مراد ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، دیکھیے یہ زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگایا اور ادا کریں گے ثا، ثا، ثا۔ تو ہو سکتا ہے کہ زبان کی کچھ حصہ اس دانت سے یا اس دانت سے بھی لگ جائے، زبان کی بناوٹ پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو بہت ایکیوریٹ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی زبان ایسے ٹچ نہ کرے۔ تو آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکال کے ایجز سے لگائیں۔ جب آپ زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے تو ان کے سرے سے چھونا آسان ہو جائے گا۔ ثا، پیچھے سے سانس جاری ہوگی اور وہ سانس اس زبان اور دانتوں کے سرے کے درمیان سے نکلے گی۔ ثا، ثا۔ ایک اور بات کا خیال رکھیے کہ یہ زبان اس دانتوں کے سرے سے اتنی زور سے ٹچ نہیں کرنا کہ ہوا کو پاس ہونے کو یا سانس کو جاری رہنا مشکل ہو جائے، یعنی کہ بہت زور سے اس کو بند نہیں کرنا ہے، ثا ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ
हल्का सा छूना है इस एजेस के ऊपर, इस किनारे पे जबान दांतों के सिरे के ऊपर को छूना है जबान की नोक से। सा सा सा। देखिए इसमें क्योंकि फासला ज़्यादा है, आप के हमारे सामने नहीं है, मश्क नहीं हो पाती, तो इसलिए मुख्तलिफ अंदाज में जितनी बातें हमारे जहन में आती हैं हम इसमें कह देते हैं। तो जिन लोगों को जिस तरह समझ में आए वो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अहम बात मखरज के लिए ये है कि वो अपनी जगह से सही अदा हों, उनकी जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह वो हरफ सही अदा हो जाएगा। ये देखिए मुंह के अंदर के हिस्से से अंदर के हिस्से को दिखाया जा रहा है कि जबान का ये जो पूरी जबान है, जबान की टिप यानी नोक आपने उठाई और ये सामने के दो दांत जो अभी हमने कहे थे उसके नीचे जाके लगी, वहां पे जब लगती है तो ये सांस को दिखाया जा रहा है कि सांस ऐसे जारी है और ऐसे मुंह होंठों के दरमियान से निकल जाती है। सा सा सा। इसमें एक बात का और ख्याल रखिए कि इसमें विस्लिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे सीन सीन वैसी आवाज नहीं होगी, बल्कि ये विसल के बगैर यानी सीटी जैसी आवाज नहीं होगी। तो ये जब इस तरह आप जबान की नोक जब इस पे लगाएंगे दांतों के नीचे, तो विस्लिंग यानी कि सीटी जैसी आवाज खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सा सा। दो चीजों का ख्याल रखिए, एक तो ये कि अपने मखरज से वो अदा हो रहा हो, यानी आप जबान की नोक को दांतों के नीचे वाले हिस्से यानी दांतों के सिरे से लगाना ये जरूरी है। एक काम तो ये कीजिए कि उनको मखरज से अदा करने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरी ये कोशिश कीजिए कि आवाज को आवाज से मिलाइए, जैसे आवाज आप सुन रहे हैं कोशिश कीजिए इसी तरह की आवाज निकले। सा 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 सा। तो जबान थोड़ी निस्बतन बाहर की तरफ निकलेगी और इस बाहर के निकलने की वजह से आपको दांतों के सिरे पे लगाना, जबान की नोक को लगाना आसान हो जाएगा। सा सा। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जबान की नोक ऊपर से तो लग रही है ऊपर के दो दांतों में और नीचे से भी टच हो रही है, तो अगर वो नीचे से भी लगती है तो कोई बात नहीं। एक बात यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखिए कि जब आप सा की अदायगी करें तो आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए। ये तीनों के तीनों हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें होंठों को हिलने नहीं देना है, कि इस मखरज से तीन हरूफ अदा होते हैं, सा ज़ाल ज़ौ। सा की अदायगी हमने देखी, ज़ाल और ज़ौ ये भी बिल्कुल उसी मखरज से अदा होगा जहां से सा अदा हो रहा है, जैसे कि तारीफ में नजर आ रही। देखिए सा ज़ाल ज़ाल भी ऐसे अदा होगा। फर्क ये है कि जब सा अदा करेंगे तो सा में ये सांस जारी रहती है और ये सांस इस तरह से होंठों के दरमियान से निकलेगी, सा सा सा। जबकि ज़ाल के अंदर ये सांस जारी नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर एक वाइब्रेशन, एक इस तरह से आवाज पैदा होगी, ज़ाल 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 ज़ाल। जैसे जा होता है इसी तरह से एक यहाँ पे आवाज पैदा होगी और ये इसमें सांस जारी नहीं होगी ज़ाल के अंदर, और आवाज इस तरह से पैदा कीजिए, ज़ाल ज़ाल ज़ाल। ये जा से बहुत मिलता है, जिसे उर्दू में जे भी कहते हैं, लेकिन इसमें जब आप टिप को जबान की नोक को नीचे वाले एज पे लगाएंगे तो आवाज ज़ाल ज़ाल की तरह पैदा होगी। और अहम बात यह है कि इनमें सीटी जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे ज़ाल ज़ाल, ये गलत है। और जो इसकी सही आवाज है वो है ज़ाल ज़ाल ज़ाल। तो तमाम बातें जो सा के लिए पहले की गई थी कि वो नीचे के दांत से भी छू सकते हैं, और जबान टिप में जो है वो दो की जगह चार दांतों से भी छू रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जबान को दो दांतों से लगना जरूरी है। ये तीनों हरूफ के लिए एक ही बात है, लेकिन इन दोनों हरूफ में फर्क यह है कि सा में
सांस जारी रहती है। आप महसूस करेंगे कि सांस बाहर आती है, पीछे से आते हुए सांस होठों के दरमियान से निकल जाती है। जबकि जाल में इसमें सांस जारी नहीं रहती बल्कि जाल जाल। अच्छा, अब जैसे हम आपको करके ये बता रहे हैं जाल, आपको इतनी देर तक की साउंड नहीं पैदा करनी, बल्कि जैसे आपकी आवाज निकल जाए जाल जाल जाल, क्योंकि ये जो चीज है, जो जाल के अंदर की जो साउंड आ रही है वही उसका मखरज है। बाकी जो बचता है आल, वो तो जाल के हरफ को लिखने के अंदर आल आ रहा है, लेकिन असल जो इसका मखरज है वो है जाल जाल। देखिए ज़ा जो है वो निस्बतन उसमें भी सांस जारी नहीं रहेगी, और उसमें आवाज जारी होगी इस जगह से कि जहां पे जबान की टिप है, उस टिप को दोनों दांतों के एज पे लगाइए, सिरे पे लगाइए, जिस तरह से सा और जाल अदा हुआ है। फर्क यह है कि ज़ा के अंदर पीछे से जबान उठ जाएगी। पीछे से उठने का मुराद क्या है? देखिए ये दिखा रहे हैं एरो के जरिए कि जबान को पीछे से उठा लें, हलक की जानिब जो है जबान उठी भी हो। ज़ा ज़ा ज़ा, जिस तरह हमने पहले बात की थी, तो के अंदर जबान को पीछे से उठाना है, वही बात यहाँ पे भी है कि जबान को पीछे से उठाइए और अदा कीजिए ज़ा 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 ज़ा। इसमें भी सांस जारी नहीं होगी। ये सांस जो दिखा रहे हैं, ये क्योंकि तीनों का मखरज एक ही है, सा जाल और ज़ा, तो इस मखरज से ये सांस जारी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरफ सा के अंदर वो जारी होगी सांस, और जाल और ज़ा में वो जारी नहीं होगी। एक बात आप खास तौर पे इसमें महसूस करेंगे, दोनों के अंदर एक तरह की कैफियत भी है, लेकिन फर्क ये है कि जाल जो है वो बारीक है, और जबकि ज़ा ये वाला जो हरफ है ये पुर पढ़ा जाएगा, ज़ा ज़ा। तो तीनों की अदायगी एक दफा दोबारा देखते हैं। सा जाल ज़ा, सा जाल ज़ा। देखिए यहाँ इस पिक्चर को देखिए तो जबान निस्बतन उठी भी है, और ये टिप हमेशा से तीनों हरूफ के अंदर दांतों के सिरे से लग रहा है, लेकिन जबान को यहाँ देखिए गौर से, तो ये जबान थोड़ी सी उठी भी है। इसके बरअक्स यहाँ पर जबान जो है वो थोड़ी सी नीचे की जानिब है, यानी जबान को आपको पीछे से उठाने की कोशिश नहीं करनी है। जिस तरह से जबान पीछे है वैसी रहेगी, सिर्फ टिप ऑफ द टंग यानी जबान की नोक को यहाँ तक पहुंचाना है और अदा करना है सा जाल। इन दोनों के अंदर जबान को नहीं उठाना है पीछे से, बल्कि पीछे वैसे ही छोड़ देना है जैसे है। जबकि ज़ा के अंदर ये जबान ऊपर की तरफ उठेगी, जब ही ये हरफ जो है फैट हो जाएगा, पुर हो जाएगा, यानी भारी पड़ा जाएगा। और इसकी पुर करने का तरीका हमने ता दाल तो में भी देखा था, उसमें भी आप पिछले वीडियो में इंशाअल्लाह देख सकते हैं कि जब किसी हरफ को मोटा करना हो तो उसमें क्या करना होता है कि जबान को पीछे से ऊपर की जानिब उठाना होता है। यहाँ इंशाअल्लाह इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम जीम, शीन और या के मखरज देखेंगे और उनकी अदायगी के तरीके के ऊपर बात की जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए यहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि जो हरूफ आप कर चुके हैं उनकी बहुत ज़्यादा मश्क कीजिए। ये सिर्फ एक दफ़ा सुन लेने से या कुछ दफ़ा अदा कर देने से ये बात आपको यानी कि ये चीज़ पक्की नहीं होगी। आपको कोशिश ये करना है कि इनकी अदायगी जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें। चलते फिरते भी ये हरूफ दोहरा सकते हैं और इनके मखारिज को जहन पे बिठाने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसमें मश्क करेंगे तो अल्लाह की मदद से ये चीज़ आसान होगी इंशाअल्लाह। यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।